हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉल मनी मार्केट और उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशें जो है पढ़ी थी। बताओ देखिए कौन बताएगा, जो अभी तक एक बार भी नहीं बताया जिसने। हाँ पीछे पीछे, हाँ हाँ पीछे मत देखो, तुम्हें कह रहा हूँ। Hello. Call money market. Yes. Day-to-day transactions. During day-to-day transactions, the banks require some additional money to fulfill, and some other banks have some additional money. In such situations, the transaction between two banks is known as call money market. हाँ बोलते जाओ, बस सुन रहा हूँ। All the terms between the transactions are fixed on phone call. Therefore, it is also called as call money market. Its interest rate is called as call rate. It is also called as reference rate because RBI takes its reference rate during to to review the monetary policy. Money borrowed for 1 days is known as call money, and money borrowed for 1 days to 14 days is known as notice money. The largest call money market is in London, which is interest rate is called LIBOR. London Inter Offer Bank Rate. Interbank offer rate. Interbank Offer Rate. And India's largest call money market is in Mumbai, which is called as MIBOR. Urjit Patel Committee. Urjit Patel Committee is constituted in 2013. Its recommendations are RBI should have to focus on only one target, that is to control inflations, not to control the various other activities such as employment generation, promoter to exporters, etc. Target GDP inflation growth. should be between 4% plus minus 2%, or monetary policy should be reviewed in 60 days instead of 45 days. 4% plus minus 2 what? 4% plus minus 2% to control the target inflation. The inflation should be between 2% to 6%. How will you measure the inflation? How will you measure the inflation? Inflation should be measured with the viewpoint of consumer price index instead of wholesale price index. Consumer price index instead of wholesale price index. Government should also have to cooperate to control the inflation. According to the Urjit Patel Committee, there are 5 members in Monetary Policy Committee to review monetary policy. Then government accept these recommendations and forms a Monetary Policy Committee of 6 members, in which 3 members from RBI and 3 members nominated from government. Its chairman is RBI Governor. Governor. Decision should be taken through voting, and RBI Governor has a power of casting vote. Tenure of nominated members 3 years, or quorum 4 members. And inflation, if the inflation is not controlled in regular of 9 months, then its committee gives its clarification. चलो वेरी गुड, बैठो। तो अपन ने पढ़ रहा था, ये किसने भेजी है पर्ची है? मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, अपस्फीति, तरलता, ये समझ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट कराए। कौन है ये जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? ये धमकी तो मैं दे रहा हूं। कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा करो देखे। मौद्रिक नीति क्या होती है तुम्हें समझ में नहीं आई अभी तक है? कितने लोगों को नहीं है ये मौद्रिक नीति समझ में? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कोई नहीं है ऐसा आदमी? फिर मतलब बताने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई होती है। महंगाई को कहते हैं मुद्रास्फीति। महंगाई क्या होती है? महंगाई क्या होती है? सिंपल अर्थ में महंगाई क्या होती है?
स्प्रिंग बोर्ड की फीस 88,000 से 2 लाख हो जाए तो क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या बढ़ जाएगी? महंगाई हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाना। और अपस्फीति क्या होती है? मंदी। अगर कीमतें कम हो जाए तो अपस्फीति कहलाती है। और तरलता क्या होती है? ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछ, इसका मतलब तुम क्लास में आए ही नहीं हो, या क्लास में रहते ही नहीं हो, और ये पर्चियां भेजते हो। मैं आगे से पर्चियां एंटरटेन नहीं करूंगा, असली चेहरे लेकर सामने आओ तुम्हारे, ठीक है? चलो खैर, मौद्रिक नीति क्या होती है वापस बता देता हूं तुम्हें। मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, जिसके अंदर आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है। और मौद्रिक नीति में तरलता को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। एक तो होते हैं मात्रात्मक उपाय और दूसरे गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के अंदर क्या होता है? तो बैंक रेट का प्रयोग करते हैं, सीआरआर का प्रयोग करते हैं, एसएलआर का प्रयोग करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इन सब के माध्यम से तरलता को बढ़ाने और तरलता को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से तरलता को कम करेंगे या बढ़ाएंगे। और दूसरा कुछ गुणात्मक उपाय होते हैं, जैसे मार्जिन आवश्यकता जो है वो गुणात्मक उपाय होता है, और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, इसके बाद क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन, ये सब चीजें जो होती है वो क्या होती है? गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय अपनाकर आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है, और तरलता को नियंत्रित करने की जो उसकी नीति है, उस नीति को अपन क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस तरलता को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इस तरलता को नियंत्रित करके हम क्या करना चाहते हैं? तो पहले क्या होता था कि इसके जो उद्देश्य थे वो बहुत अलग अलग थे, कि भाई इसका उद्देश्य जो है वो जीडीपी में वृद्धि करना भी होता था, इसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि भी होता था, इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी होता था, इसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना भी होता था। इस प्रकार से उद्देश्य क्या थे? बहुत ज्यादा थे, ठीक है? और जब बहुत ज्यादा उद्देश्य आप टारगेट करोगे, एक से ज्यादा अगर नावों में सवार करोगे तो क्या होगा? तो कहीं पर नहीं रहोगे, डूब जाओगे। तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। और उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि आरबीआई को बाकी सारे काम छोड़ देने चाहिए, और उसकी जो मौद्रिक नीति है, ये जो तरलता को नियंत्रित कर रही है, इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए महंगाई को नियंत्रित करना। और महंगाई को नियंत्रित करके कितना करना है ये भी बताया। कितना करना है? 4% प्लस माइनस 2%, यानी महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए आपको आप मौद्रिक नीति जो है वो बनानी है। और ये जो मौद्रिक नीति, ये जो 4% प्लस माइनस 2 है, ये क्या है? ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं है, ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। भाई जो महंगाई है, महंगाई को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो होलसेलर, थोक विक्रेता के आधार पर देखा जा सकता है, और दूसरा उपभोक्ता के आधार पर जो है वो देखा जा सकता है। अगर होलसेलर के आधार पर देखा जाता है तब तो हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और अगर उपभोक्ता के आधार पर देखा जाता है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो 4% प्लस माइनस 2 है, ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसके बाद में कि भाई अब ये जो मौद्रिक नीति है, ये पहले कौन बनाता था? सिर्फ आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर डिसीजन लेता था कि रेपो रेट बढ़ानी है या कम करनी है, और बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है, और कम करनी है तो कितनी करनी है। ये सब निर्णय कौन लेता था? आरबीआई का गवर्नर अकेला रहता था। अब एक आदमी के दिमाग पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई एक व्यक्ति होगा, उसको लगे कि भाई यार बढ़ा दे, और उसको लगे नहीं नहीं ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, और ऐसा पता लगे फिर बाद में एक समय आ जाए जो बहुत ज्यादा स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और वो रेजिग्नेशन देकर चला जाए। अब देश का तो भट्टा बैठ गया, हर वो आदमी रेजिग्नेशन देकर चला गया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए ये कहा कि एक आदमी की बजाय कंसल्टेशन होना चाहिए, कि कुछ जो है विशेषज्ञ लोग जो हों, बहुत ज्यादा इस बात के जो विशेषज्ञ हों, वो सब आपस में बात करें, और बात करके उसके बाद में निर्णय जो है वो ले। तो एक व्यक्ति की बजाय जो है वो 6 लोगों की एक कमेटी बनाई। हालांकि उर्जित पटेल ने तो कहा था 5 लोगों की बनाओ, ठीक है? तो एक कमेटी बनाओ, एक समिति बनाओ, जिसमें कितने लोग होंगे? उर्जित पटेल ने कहा 5 लोग होंगे, ठीक है? और उस समिति को नाम देंगे मौद्रिक नीति समिति। और वो जो होगी वो फिर मेजोरिटी से डिसीजन लेगी कि भाई कौन, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बढ़ा दो, तो हाथ ऊंचा करेंगे बढ़ाने वाले, और जो कहेंगे कि मत बढ़ाओ तो वो दूसरे तरीके से बात करेंगे। फिर वोटिंग करवा लेंगे, वोटिंग करवा के जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे।
सरकार ने इन जो आपकी जो रिकमेंडेशन थी उसको मान लिया और एक बना दी मौद्रिक नीति समिति। और पर मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के लोग भी उसके अंदर होते हैं। और इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं? बहुमत से निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। सारे निर्णय कैसे लिए जाएंगे? बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। और जो अगर 3-3 हो गए तो फिर क्या होगा? टाई हो गया तो फिर जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो एक एडिशनल वोट और डालेगा। उस एडिशनल वोट को कहेंगे कास्टिंग वोट या निर्णायक मत जो है उसको कहा करते हैं। और ये जो मौद्रिक नीति की समीक्षा है कि एक बार आपने मौद्रिक नीति निर्धारित कर दी तो उसके बाद वापस इसको कितने टाइम में देखोगे? 60 दिन बाद। एक बार रेपो रेट डिसाइड कर ली तो फिर 60 दिन तक उसको मत छेड़ो, उसको फिर वापस देखने का काम करोगे 60 दिन के बाद में, उसके बाद वापस चर्चा जो है वो की जाएगी। तो इस तरीके से निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। ये होती है मौद्रिक नीति। फिर अपन एक ने ये भी पढ़ा था कॉल मनी। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? अब तो आ गया समझ में मौद्रिक नीति क्या होती है? जिसने लिखी थी पर्ची है उसको भी आ गया कि नहीं आया? अब नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। हाँ, तो मौद्रिक कॉल मनी मार्केट क्या होता है? बैंक जो होते हैं उन बैंकों के पास में एक बैंक ऐसा हो सकता है जिसके पास में पैसे ज्यादा हो, दूसरा बैंक ऐसे हो सकता है जिसके पास पैसे कम हो। तो जिसके पास कम पैसे होंगे वो ज्यादा पैसे वाले से पैसे मांगेगा, और ये जो मांगता है उसको, उस मार्केट को क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट कहते हैं। और क्योंकि ट्रांजैक्शन की सारी शर्तें किस पर होती है? कॉल पर, फोन कॉल पर निर्धारित होती है, इसलिए इसको कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। क्योंकि कितने की इंटरेस्ट रेट होगी, कितने टाइम में चुकाया जाएगा, कहां पर पैसे मिलेंगे, ये सब बातें जो है कॉल पर ही डिसाइड हो रही है। उसके बाद इसमें जो रेट होती है इंटरेस्ट रेट, उसको क्या कहते हैं? कॉल रेट कहते हैं। अगर एक दिन के लिए मनी लो तो कॉल मनी, और अगर 1 से 14 दिन के लिए लो तो नोटिस मनी जो है उसको कहते हैं। ठीक है, पर कॉल मनी मार्केट में दिक्कत यह है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो इसी के अंदर होते हैं। और इसलिए आरबीआई ने 2000 के अंदर क्या शुरू किया? रेपो ऑपरेशन जो है या रेपो मार्केट शुरू किया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो मार्केट विकसित किया गया। और अभी वर्तमान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है वो कहाँ है? लंदन के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई। उसकी दुनिया, जो लंदन वाला उसकी इंटरेस्ट रेट को लिबोर और भारत वाली इंटरेस्ट रेट को मिबोर कहते हैं। ये है, ये पढ़ लिया था अपन ने। देखो देखो, सिंपल सा है। Which of the following statement is or are correct regarding monetary policy committee? मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? It decides the RBI's benchmark interest rate. यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों को निर्धारण करती है। रेपो रेट ही होती है बेंचमार्क रेट, तो हाँ उसको निर्धारित करती है। फिर इट इज अ 12 member बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। यह 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष उसका पुनर्गठन किया जाता है। कितने सदस्य का निकाय है? 6, और रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 वर्ष के अंदर होता है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है ना। कौन किसके अधीन? आरबीआई गवर्नर। तो सिर्फ आंसर क्या होगा इसका? ये जो है वो आंसर हो जाएगा। जोश में बताओ, सोच के विचार करो। हैं? जो तुम्हें पता है उसके आधार पर। निम्न में से किसने भारतवर्ष में 2016 से 2021 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द 4% इन्फ्लेशन टारगेट
इन इन्फ्लेशन विद टॉलरेंस लेवल ऑफ +-2% फॉर द पीरियड 2016 to 2021। किसने किया ये किया भारत सरकार ने। किसने किया है? भारत सरकार। क्या लिखा था? उर्जित पटेल समिति की सिफारिशें लिखी थी, फिर बाद में क्या लिखा था? भारत सरकार ने इन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो यानी समिति की सिफारिश कौन स्वीकार? आरबीआई थोड़ी स्वीकार करेगी, कौन स्वीकार करता है? भारत सरकार। और भारत सरकार ने स्वीकार करने के बाद में आरबीआई का जो एक्ट है उसके अंदर संशोधन किया और संशोधन करके ये लिखा कि आरबीआई का जो उद्देश्य है वो क्या है? महंगाई को नियंत्रित करना है। तो यानी ये निर्धारण किसने किया है, मतलब इसको स्वीकार किसने किया? यहां पर क्या लिखा हुआ है? किसने लक्ष्य निश्चित किया है? तो लक्ष्य निश्चित किया भारत सरकार ने। आरबीआई का तो काम है लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य निश्चित तो किसने किया है? भारत सरकार ने। और आरबीआई का क्या काम है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम है। आरबीआई को तो काम दिया है कि आपको ये काम करना है, पर आपको क्या काम करना है ये किसने बताया है? भारत सरकार ने। और भारत सरकार को ये बात किसने बताई, या बताई तो नहीं, सुझाई किसने? ये उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल ने, इसलिए थोड़ा उस पर ध्यान देना था। चलो, उर्जित पटेल के बाद में ये है, ये कौन है? ये है भारतीय जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है उसके, बैंकिंग व्यवस्था के पितामह हैं नरसिम्हन। कौन है? नरसिम्हन। नरसिम्हन अवतार है ये। नरसिम्हन समिति बनाई गई थी भारत के अंदर 1991 में। 1991 के अंदर भारत में जब आर्थिक सुधार हुए तो आर्थिक सुधार बड़े व्यापक हुए, कई सारे क्षेत्रों के अंदर सुधार किए गए। तो वैसे एक बहुत बड़ा सुधार जो है वो कहां पर किया गया? बैंकिंग क्षेत्र। और बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इनके नेतृत्व में? नरसिम्हन साहब के। ये नरसिम्हन जो है वो पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, बाद में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में फिर सरकार ने इनको वापस बुलाया और वापस बुलाकर इनको कहा कि साहब आप जो है वो एक आपके नेतृत्व में कमेटी बनाते हैं और आप हमें बताओ कि हमें भारत के बैंकिंग क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुधार करने चाहिए। और इन्होंने जो सुधार बताए वो आज भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बताए तो कब थे? 1991 में, 91 में। और अभी भी हम जो है उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। और भारत का बैंकिंग जो तंत्र है उसमें इतने बड़े बदलाव जो है वो किसकी वजह से हुए? नरसिम्हन। और नरसिम्हन की वजह से हुए, तो इसलिए 2 बार यह समिति जो है वो बनाई गई। पहली बनाई गई नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट 1991 के अंदर, और फिर क्योंकि ये फर्स्ट इतना ज्यादा सफल रहा, पार्ट 1 जो है वो इतना ज्यादा सफल रहा, तो इसलिए इसका पार्ट 2 आया। पार्ट 2 आया नरसिम्हन कमेटी सेकंड। फिर 1998 तो इन्होंने इतनी अच्छी जो बातें बताई गई कि भारत सरकार से रहा नहीं गया, भारत सरकार ने इनसे वापस बुलाया कि नरसिम्हन साहब को कि आप तो फिर से आओ और फिर से और बताओ और क्या क्या करना चाहिए हमें इस बैंकिंग क्षेत्र के अंदर। तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र के अंदर सबसे फेमस अगर कोई कमेटी है तो वो कौन सी है? नरसिम्हन समिति है। सबसे फेमस कमेटी कौन सी है? नरसिम्हन समिति है। तो लिखो देखिए, नरसिम्हन समिति 1, नरसिम्हन कमेटी 19, नरसिम्हन कमेटी 1। नरसिम्हन समिति फर्स्ट। क्या क्या नरसिम्हन साहब ने क्या कहा? तो देखो, सबसे पहले तो नरसिम्हन ने कहा कि ये जो बैंकों का जो तुम नेशनलाइजेशन करते हो ना, ये बंद करो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने कर दिए थे 2 बार, 1969 में कर दिए थे 14 बैंक तो, और फिर 1980 के अंदर 6 बैंक और कर दिए थे। तो ये राष्ट्रीयकरण जो है बैंकों का क्या किया जाना चाहिए? बंद किया जाना चाहिए। आगे से भविष्य में जाकर किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, क्योंकि अगर बैंकों का इस तरीके से राष्ट्रीयकरण करोगे तो कोई भी प्राइवेट संस्था जो है वो बैंक लगाने के लिए तैयार ही नहीं होगी। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो है या प्राइवेट कोई संस्था है तो वो अगर वो सोचे कि भाई मैं अपना बैंक खोलूं तो वो बैंक ओपन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि भाई बैंक तो हम ओपन करेंगे, और ओपन करके हमने इस बैंक को बड़ा सारा बनाया और उसके बाद में जब ये ठीक ठाक बन गया, प्रॉफिटेबल बन गया, तो मेहनत तो सारी हमने की, और फिर बाद में एकदम से सरकार आएगी और सरकार कहेगी अब तुम्हारा इसमें कोई मालिकाना हक नहीं रहा, ये सारा मालिकाना हक किसका है? सरकार। और ऐसे करोगे तो फिर कोई भी जो है बैंक नहीं लगाएगा। तो यानी प्राइवेट सेक्टर तो बैंक स्थापित ही नहीं करेगा। और दूसरी बात कि तुमने जो ये सरकारी बैंक स्थापित किए भी हैं, ये सरकारी बैंक जो है वो बैंकिंग क्षेत्र का भट्टा बैठा दिया इन्होंने।
तुमने कहा तो था कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर इससे ना तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हुई है और ना ही बैंक जो है बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है इसके माध्यम से कि भाई बैंक अगर सरकारी बैंक है और ये सरकारी बैंक अगर घाटे में भी चल रहा है, ये गवर्नमेंट का बैंक है और कोई दूसरे बैंक है नहीं, तो यानी सभी लोगों के पैसे किस में जमा होंगे? इन्हीं में जमा होंगे। ठीक है। और ये जो लोग हैं यहां पर बैंक के अंदर इसको चलाने के लिए जो लोग हैं वो कोई बहुत ज्यादा ध्यान इसके ऊपर देते नहीं है कि अगर इनको कहा जाए कि भाई आपको लोन देना है तो किसे लोन दें, तो किसे लोन दोगे? तो यहां पर बैंक का मालिक कौन है? सरकार। और सरकार में बैठे नेताजी, तो नेताजी का जो रिश्तेदार होता है उसको क्या देते हो? ऋण देते हो, भले उसके जो है लक्षण हो और क्या नहीं हो। तो इस तरीके से आपने जो है इसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया। बैंक जो है बैंकों का राजनीतिकरण हो गया और बैंकों का राजनीतिकरण होने के कारण बहुत सारे रिस्की लोन जो है बैंकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। जहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी का भी फोन आ गया कि साहब ये व्यक्ति है इसको लोन सैंक्शन करना है, तो भले ही उस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लोन सैंक्शन हो जाएगा। वो चुकाए तो ठीक है, नहीं चुकाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपने जनता का पैसा ले लिया और जनता का पैसा लेकर जो है उसको इस तरीके से बांट रहे हो, और ये बांटोगे तो ऐसा कोई इससे जो है वो लाभ नहीं होगा, और मतलब फिर बैंक को नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो क्या होगा? पर इसका मालिक तो सरकार है, सरकार और पैसा डाल देगी इसके अंदर, तो नुकसान हो रहा है तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लोग हैं बैंक के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी इनकी है, और सरकारी नौकरी तो इन्होंने ये ऐसा कोई प्रयास नहीं करते कि भाई अपन को ज्यादा से ज्यादा खाते खोलने हैं। इस बात का कोई इनको जो है वो दिक्कत नहीं है कि भाई ज्यादा खाते खोले या बैंक के अंदर कोई लोग आए तो उनको सर्विस जो है वो अच्छे से दे, ऐसी कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। अब इसका मतलब तो हुआ कि सामने वाले की गरज है कि तेरे को पैसे जमा कराने तो करा, नहीं कराना तो भाग यहां से, हमारे को ऐसी तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तो इनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, ये तो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे पैसे चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से लोग, अगर लोगों से ऐसा बिहेव करोगे या आपकी जो तंत्र प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल होगी, तो लोग आपके यहां पर आकर पैसे जमा नहीं कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो आपका विकास जो है वो नहीं होगा। तो आपका छोटा सा बैंक है उतना ही बना रहेगा, कभी भी ये बैंक जो है वो बड़े नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले काम तो क्या होना चाहिए? आगे से कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए 1991 के बाद में अभी तक कोई किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। और इन्होंने कहा कि जो सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो करो मत, और इवन ये कहो कि प्राइवेट सेक्टर को कि आप और बैंक लगाओ, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करो कि वो भी क्या लगाएं? बैंक लगाए। तो इसलिए निजी क्षेत्र के बैंकों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को लाइसेंस जो है वो दिए जाने चाहिए, और इसलिए फिर इनकी सिफारिश के बाद ही 1993 में पहली बार वापस प्राइवेट बैंक जो है उनको लाइसेंस दिए गए। कब दिए गए? 1993 के अंदर जाकर जो है प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिए गए, और ये कहा कि भारत के अंदर निजी बैंक लगाए जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं है कोई जरूरी कि सिर्फ भारत वाले लगाए, कोई विदेश से भी कोई आकर अगर भारत में बैंक लगाना चाहता है तो उसको भी लगाने दो, तुम्हारा क्या दिक्कत है? भाई विदेशी कोई कंपनी है, विदेशी बैंक है, उस विदेशी बैंक के पास में पैसे होते हैं बहुत ज्यादा, वो अगर भारत में बैंक लगाएगा इसका मतलब भारत का कोई बिजनेसमैन उसके पास जाकर उधार ले, और वो अगर उसको सस्ते में उधार दे रहा है या बहुत आसानी से उधार दे रहा है तो वो ले ले आराम से। और अगर आसानी से बैंक उसे उधार लेगा तो अपना बिजनेस लगाएगा तो निवेश होगा तो रोजगार जनरेट होगा तो लोगों की नियमित आय बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसलिए अगर कोई विदेशी बैंक आकर भी यहाँ पर बैंक स्थापित करना चाहता है तो उसको भी अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा मत कहो कि सब उसको जो हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, तो फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कर दो। और दूसरा कि फॉरेन बैंक के अंदर अगर किसी व्यक्ति का खाता है, आपने किसमें खाता खुलवा रखा है? किसी फॉरेन बैंक में। मान लो भारत का कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, और उसका खाता जो है वो फॉरेन बैंक में, जैसे विदेशी बैंक का नाम स्विस बैंक जो भारत में काम करता हो, HSBC, सिटी बैंक, जैसे फेमस बैंक कौन सा है? सिटी बैंक जो है वो है। अब सिटी बैंक अमेरिका का है, आपने उसके अंदर खाता खुला लिया, और आपको पता है उस सिटी बैंक को, मतलब उस सिटी बैंक में आपके सारे पैसे जमा होते हैं, सिटी बैंक वालों के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है कि साहब ये बिजनेसमैन जो है वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसका खूब बिजनेस चलता है, और हर महीने के अंदर ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन जो है वो होते हैं। अब ये बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहे, एक्सपेंड करना चाहे, और ये चाहे कि साहब मेरे को जो है वो अमेरिका के अंदर जाकर एक और फैक्ट्री लगानी है, तो अमेरिका में जब फैक्ट्री लगाएगा तो वहां पर उसको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और अमेरिका के ये बैंक आपके पास सिटी बैंक है ही, सिटी बैंक में अगर वो एप्लीकेशन दे
कि साहब मेरे को अमेरिका के अंदर जो है ये फैक्ट्री लगानी है और मुझे इतने इतने का लोन आप सैंक्शन करो, तो सिटी बैंक वाले उसको आराम से लोन दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि उनको उसका पूरी हिस्ट्री पता है कि इस आदमी का कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर ऐसा ना हो, भारत के किसी बैंक में आपने रीजनल रूरल बैंक के अंदर किसी ग्रामीण बैंक में खुला रखा खाता, और फिर जाओ अमेरिका, कह रहे मेरे रीजनल रूरल बैंक के अंदर 50 करोड़ रुपए पड़े होंगे, तो अगला कहेगा पड़े होंगे तो हम तो नहीं जानते। तो इस वजह से अगर आप अंतरराष्ट्रीय बैंक के अंदर आपका खाता खुलता है तो इससे आपकी खुद की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ सकती है। दूसरा, भारतीय जो बैंक है उन भारतीय बैंकों को उन इंटरनेशनल बैंकों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक के साथ में क्या करना पड़ेगा? कॉम्पीट करना पड़ेगा, उनके कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। और जब व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है तो फिर व्यक्ति के अंदर से जो एक्सीलेंस है वो बाहर निकल के आती है। तो बैंक जो है वो बैंक भी अच्छा काम करने के लिए तभी तत्पर होगा जब उसको दिखेगा कि सामने वाला जो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहा है। अभी तो सारे के सारे सरकारी बैंक हैं, सारे के सारे एक ही डर्रे पर चल रहे हैं। एसबीआई वाले भी वैसे ही हैं, पीएनबी वाले भी वैसे ही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले वैसे ही हैं। वो सब आपस में मिलते हैं, एक जैसी बातें कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। इनको बीच में ऐसा हो ना कि जब इनकी कोई पार्टी हो बैंकों वालों की और उसके अंदर 2-3 ये सिटी बैंक और वो बड़े बड़े वो आए, फिर उनको लगे यार ये लोग ठीक ही हैं यार, इनके अलग ही तरीके से काम चलता है, तो अपन को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए कंपटीशन होगा तो वो भी अच्छा करने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है। और भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग जो व्यवस्था है उससे उसका जुड़ाव हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो किससे लिंक होगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक होगी। तो इस तरीके से विदेशी बैंकों को भी भारत में अनुमति दी जानी चाहिए। तो पहली बात तो इन्होंने कहा आगे से कभी क्या नहीं करोगे, कोई किसी का राष्ट्रीयकरण मत करो। दूसरा, निजी बैंकों को अनुमति दो और साथ साथ में विदेशी बैंकों। और ये जो सरकारी बैंक तुमने जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया है उसमें भी सरकार की हिस्सेदारी को कम कर दो, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो खराब चल रहा है। वो इसका पॉलिटिसाइजेशन इसलिए हो गया क्योंकि इसका मालिक कौन बना बैठा है? सरकार है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा इसमें से हो जाता है। ये प्रोफेशनली ये जो है कार्य नहीं कर पाती, प्रोफेशनल कार्य इसके अंदर नहीं हो पाता। ये उस जिम्मेदारी भरे भाव से कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनका मालिक सरकार बनकर बैठी है। तो सरकार की हिस्सेदारी को थोड़ा थोड़ा क्या करो? कम करो। और कम करते करते कितना ले आओ? उसने कहा 51% ले आओ, यानी मेजोरिटी तो हो सरकार के पास, परंतु बाकी सब जो है वो क्या कर दो आप, इसको शेयर बाजार के अंदर और इसके शेयर्स जो है वो बेच दिए जाए। यानी सरकार की हिस्सेदारी को यहां पर कम करना है। तो देखो बाकी फिर दूसरे भी होंगे 49% वाले। और जब इस बैंक को लॉस होगा, बैंक अगर ढंग से काम नहीं कर रहा, लॉस होगा, तो ये जो 49% का मालिक है वो चिल्लाएगा कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, बैंक जो है ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है। और बैंक नहीं काम कर रहा है तो बैंक का जो भी एमडी होगा, जो भी इसका सीईओ होगा, एमडी होगा, उसको बुलाएंगे, उसको डांटेंगे कि भाई तेरी तनख्वाह काट लेंगे हम, या तेरी छुट्टी कर देंगे, या तो तू काम कर, और काम नहीं कर रहा तो तेरी छुट्टी कर दी जाएगी। जैसे उस एमडी को डांटोगे तो एमडी फिर नीचे जाएगा, अपने सारे इंप्लॉइज को बुलाएगा, उनकी मीटिंग लेगा, उनको कहेगा भाई काम करो, और काम नहीं करोगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, और मेरी छुट्टी हो इससे पहले मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। तो इस वजह से फिर उनको भी एक भय लगेगा कि यार अपना भी छुट्टी हो सकती है कभी भी, तो अपने काम को अपन को ज्यादा अच्छे से करना है। तो इसलिए इस बैंक जो है, इन बैंकों का क्या किया जाना चाहिए, इसमें से इसकी हिस्सेदारी को, सरकार की हिस्सेदारी कम करके 51% कर दी जानी चाहिए। किसकी रिकमेंडेशन थी? नरसिम्हन समिति फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी जो है उसने कहा। फिर नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि सीआरआर एसएलआर जो है उसको थोड़ा कम करो। पहले सीआरआर एसएलआर क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती कि ये सीआरआर जो है वो सीआरआर थी 15%, वर्तमान में 4% है, पहले कितनी थी? 15% जो है सीआरआर, और एसएलआर 40%। एसएलआर कितनी है? 40%। मतलब ये बैंक है, इस बैंक के पास आए 100 करोड़ रुपए डिपॉजिटर से। अब इसमें से सरकार कह रही है आरबीआई को दे दो, आरबीआई कह रही है कि पहले तो हमें दे दो थोड़े से, तो 15 करोड़ तो इधर पकड़ो, और इस 15 करोड़ पे तो हम तुमको कोई ब्याज भी नहीं देंगे, यूं के यूं रख दो इधर, और बाकी फिर 40 करोड़ किसको दे दो? वो एसएलआर के रूप में सरकार को दे दो। सरकार ब्याज तो देगी पर बहुत कम देगी, 1-2% ही देगी, जबकि इधर ये डिपॉजिटर है, इनको आपको 4 से 5% का ब्याज देना है। तो यानी ये भी घाटे का ही सौदा है, इसमें कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो 40 करोड़ तो ये चले गए, 15 करोड़ ये चले गए, कितने हो गए टोटल? 55 करोड़। 100 में से 55 तो इधर गए, बचे कितने? 45 करोड़। इस 45 करोड़ में से 40% जो है वो पीएसएल को दे दो। इस 45% का 40% किसको दे दो? पीएसएल को। 45% का 40% कितना हो गया? 45 करोड़ का 18 करोड़, यानी इसका मतलब कुछ 27 करोड़ जो आपके पास बचे। 27 करोड़ रुपए आपको क्या देने हैं? लोन में दे सकते।
100 करोड़ का डिपॉजिट आया हुआ है, कितने दिन है? 27। इस 27 में से कुछ आपको सरकारी प्रतिभूतियां खरीदनी है, 10 करोड़ की सरकारी बचे 17 करोड़। अब ये बैंक जो है वो पहले इधर तो देखा 17 करोड़, उधर देखे आरबीआई की तरफ, फिर वापस 17, फिर उधर आरबीआई। ये क्या दिया है हमको? किसको उधार देंगे और कितने में दें? अगर इस 17 करोड़ से आप ये चाहते हो कि हम हमारे बैंक का खर्चा भी निकाल लें, हम ये जो डिपॉजिटर्स हैं इनको इंटरेस्ट भी दे दें, इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं 100 करोड़ पर, और हमें जो 17 करोड़ से इंटरेस्ट निकालना है, तो 17 करोड़ से इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत महंगा देना पड़ेगा, और महंगा दोगे तो कोई लेगा नहीं, और लेगा नहीं तो बस बैठे रहो। तो इस बैंक को जो है कभी फायदा नहीं हो सकता। तो ये बैंक जो है फिर ज्यादा काम करने के लिए कभी तत्पर नहीं होगा, ये बैंक हमेशा घाटे में ही रहेंगे। तो नरसिम्हन साहब ने कहा ये अत्याचार होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, 15-15 करोड़ रुपए, 40-40 करोड़ रुपए तुम इसमें रखवा रहे हो उनके, 15%, 40%, ये कोई CRR SLR नहीं होती। इसको थोड़ा रीजनेबल लेवल पर लेके आओ, और फिर रीजनेबल लेवल पे, जैसे वर्तमान में ये 4% है और SLR लगभग 18% है, तो इसको क्या किया गया? थोड़ा कम किया गया। तो इस तरीके से CRR SLR को कम करने की बात जो है किसने कही थी? नरसिम्हन साहब ने जो है ये बात कही। लिखो देखें, नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन कमेटी, सिफारिशें कब स्थापित हुई थी? ये तो लिख ही लिया था 1991, है ना? सिफारिशें, रिकमेंडेशंस, पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। बैंक शुड नॉट बी नेशनलाइज्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए, बैंक शुड नॉट बी नेशनलाइज्ड। दूसरा, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स शुड बी एनकरेज्ड। निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स शुड बी एनकरेज्ड। और बैंकों में या सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करके 51% की जानी चाहिए। इन गवर्नमेंट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, in public sector banks, government shareholding should be reduced to सरकारी हिस्सेदारी को कम करके 51% की जानी चाहिए। In public sector banks, government shareholding should be reduced to 51%. और CRR SLR को कम किया जाना चाहिए। CRR SLR should be reduced. CRR SLR को कम किया जाना चाहिए। CRR SLR should be reduced. और इन्होंने कहा कि भाई बैंक जो है भारत के बैंकिंग तंत्र में क्या करो, तो बैंक जो 3 स्तर के बैंक होने चाहिए। बैंक्स कितने लेवल के हो? 3 लेवल के जो है बैंक हो। कि भारत के अंदर कुछ तो हो बैंक जो कि इंटरनेशनल लेवल के हो। तो भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई बैंक नहीं है, अभी तो वर्तमान में भी नहीं है। हमारा कोई बैंक ऐसा कोई फेमस नहीं है जिसकी शाखाएं जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हो। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI, और अब भारत से बाहर चले जाओ तो नेपाल, भूटान को छोड़ दो, बाकी आपको कहीं SBI की ऐसी कोई बहुत बड़ी शाखाएं जो है वो नहीं मिलेगी। तो अब भारत का बैंक सिर्फ और सिर्फ कहां काम कर रहा है? वो भारत में कर रहा है। ये तो भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है इसलिए बन गया वो इतना बड़ा बैंक, वरना जो है जनसंख्या अगर नहीं हो तो फिर कोई खुद में इतने लक्षण नहीं है। और आपको वैसे होना चाहिए कि जब आप इतने बड़े बैंक हो तो आपको कॉम्पीट करना चाहिए दुनिया के बेस्ट बैंक्स के साथ में कॉम्पीट करना चाहिए। जबकि स्कॉटलैंड छोटा सा देश है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो
बड़ा बैंक बना हुआ है। इधर चाइना का जो है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक जो है वो दुनिया का बड़ा बैंक बना हुआ है। सिटी बैंक जो है वो USA का बना हुआ है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो है बहुत बड़ी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से ये बाकी तो जो है बैंक बड़े दुनिया के जो है वो इंटरनेशनल लेवल के है, पर भारत में कोई इंटरनेशनल लेवल का बैंक नहीं। तो इन्होंने कहा कि होने चाहिए, कितने बैंक होने चाहिए? 3 से 4, एक ही नहीं, 3 से 4 बैंक जो है हमारे होने चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो। फिर राष्ट्रीय स्तर के हों कुछ बैंक, 8 से 10 बैंक जो है वो कैसे हों? राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के बैंक्स होने चाहिए। और फिर स्थानीय, कुछ बैंक ऐसे हों जो कि स्थानीय छोटे बैंक हो, तो स्थानीय स्तर के बैंक हो, फिर वो उनकी संख्या खूब सारी हो सकती है। कुछ तो लोकल बैंक्स हों, कुछ कैसे हों? राष्ट्रीय स्तर के, और कुछ कैसे होने चाहिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर के। तो जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कैसे हो? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में जैसे ये बैंकों का विलय किया जा रहा है, तो भाई SBI में SBI के सहायक बैंकों को मिला दिया। ये सहायक बैंक को मिलाकर कर क्या रहे हो आप? क्यों मिला रहे हैं? ताकि वो बैंक बड़ा बन सके, और बैंक बड़ा बनेगा, उसकी जो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो उसके बाद में वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का बैंक बन सके। तो किसी ना किसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर का बैंक बनाना है अपन को। तो और अब ये बड़े बैंक हैं, जैसे अभी विलय चल रहा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जाकर और बड़े बड़े बैंकों का आपस में विलय हो सकता है। मतलब हो सकता है कल को अपन PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा इन दोनों को मिला दे और एक ही बैंक बना दे। एक बैंक बना देंगे तो वो बैंक जो है वो क्या होगा? थोड़ा और बड़ा बैंक होगा, और बड़ा बैंक होगा तो फिर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकेंगे। और ऐसा करते करते अपन को कितने लेवल पर पहुंचना है? 3 से 4 बैंक होने चाहिए, जो अभी वर्तमान में जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक के 12 हैं, तो ये ना हो, इनको संख्या को क्या किया जाए? कम किया जाना चाहिए। लिखो, त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। अ 3-tiered बैंकिंग सिस्टम should be created। त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स, अंतरराष्ट्रीय बैंक, कितने हो अंतरराष्ट्रीय बैंक? हाँ, 3 से 4 अंतरराष्ट्रीय बैंक, 3 से 4 राष्ट्रीय स्तर के बैंक, नेशनल बैंक्स, नेशनल लेवल बैंक्स, राष्ट्रीय स्तर के बैंक 8 से 10, और फिर स्थानीय बैंक। और कौन से हो? स्थानीय बैंक होने चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और स्थानीय स्तर के। और एक दिक्कत क्या आती थी, इन्होंने कहा कि भाई एक और बात ये कि तुम्हारे ये बैंक जो है वो बैंक लोन देते हैं, और इन लोन को लोग लेके भाग जाते हैं। मान लो ये बैंक है, इस बैंक से लोन ले लिया, और लोन लेकर किसी व्यक्ति ने नहीं चुकाया तो ये बैंक क्या करेगा? ये बैंक क्या करता है वर्तमान में? ये बैंक जो है वर्तमान में उसको ब्लैकलिस्ट कर देता है। उस समय, मतलब वर्तमान का मतलब उस समय नरसिम्हन साहब ने कहा कि ये बैंक उसको ब्लैकलिस्ट कर देता है, और ब्लैकलिस्ट करता है, अच्छा तो हमारे पैसे लेके भागे, आगे से हम तुमको पैसे नहीं देंगे, जाओ। तो वो बंदा कहता है कि तुमसे पैसे चाहिए भी नहीं, तुम अकेले ही थोड़ी हो, तो ये दूसरे बैंक के पास चला जाऊंगा, वो इसके पास चला जाता है, और यहाँ से बैंक पैसे ले जाता है। फिर ये वाले भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, फिर वो तीसरे बैंक के पास चला जाता है, उससे पैसे लेके भाग जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? अलग अलग बैंकों में जा रहा है और अलग अलग बैंकों से पैसे ले रहा है। तो ये क्यों संभव हो रहा है? वो संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बैंक ने उसको जब ब्लैकलिस्ट किया था तो उसने खुद अपने यहीं पर रख लिया, और अपने अपने लोगों को तो बता दिया, अपने एम्प्लॉइज को। तो बाकी इनको कोई सूचना ही नहीं दी, इनको पता ही नहीं कि आदमी जो है इधर घोटाला करके आया हुआ है, इसके पैसे नहीं चुकाए इन्होंने। तो इसलिए कहा कि एक काम करो, तुम ऐसे मूर्खों के जैसे काम मत किया करो। ये जितने भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, ये बैंक को तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक केंद्रीय संस्था को दो, एक केंद्रीय संस्था बनाओ, और उस केंद्रीय संस्था को सारी सूचनाएं दिया करो कि तुम्हारा अगर कोई पैसा लेकर भाग रहा है तो उस इंफॉर्मेशन का एक ब्यूरो बना दो, और उस सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास में सारी इंफॉर्मेशन रहे। तो अगर किसी व्यक्ति है, उसने इस बैंक के पैसे नहीं चुकाए, इस बैंक के नहीं चुकाए, तो क्या होगा यहाँ पर?
ये बैंक उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा, और ये जैसे ही ब्लैकलिस्ट करेगा तो ये सूचना कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ आ गई। तो अब ये सूचना जो है वो, फिर ये ए बैंक इसके पास गया, ए बैंक जब ये व्यक्ति इसके पास जाएगा तो ये जो बैंक है उसको लोन देने से पहले इधर चेक करेगा कि यार कहीं इसका नाम ब्लैकलिस्ट में तो नहीं लिखा हुआ, और जैसे पता लगेगा हाँ ब्लैकलिस्ट में लिखा हुआ है, अरे तो भाई साहब सॉरी, और इसको और बता देगा अरे वो आया हुआ है पकड़ लो। तो इस तरीके से जो है वो जो सूचना होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, केंद्रीय सूचना जो है वो होनी चाहिए। तो क्या करो, सभी बैंक जो है उनको एक केंद्रीय सूचना ब्यूरो बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर इस प्रकार की सारी सूचनाएं रखी जाए। देखो, एक केंद्रीय सूचना ब्यूरो बनाया जाना चाहिए। अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो शुड बी क्रिएटेड जिसमें सभी बैंकों के द्वारा सूचनाएं साझा की जाए, इन विच ऑल बैंक्स कुड शेयर जिसमें सभी बैंकों के द्वारा सूचनाएं साझा की जा सके, इन विच ऑल बैंक्स कुड शेयर देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसलिए वर्ष 2000 के अंदर, देयरफॉर इन ईयर 2000 सिबिल की स्थापना की। किसकी स्थापना कर दी, सिबिल। सिबिल क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वर्तमान में एक स्कोर जारी होता है जिसको क्या नाम कहते हैं, सिबिल स्कोर। अगर आपने बैंकों के पैसे जो है टाइम पर नहीं चुकाए हैं तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा, और सिबिल स्कोर खराब हो गया तो फिर आपको कोई लोन जो है वो नहीं देगा। और अगर आप टाइम पर बैंकों के पैसे चुका रहे हो, यानी जैसे ये बैंक है और इसके बहुत टाइम पर टाइम टू टाइम पैसे देते जा रहे हो, टाइम टू टाइम पैसे देते जा रहे हो, तो ये सारी सूचनाएं किसको देते रहेगा, इस सिबिल को देते रहेगा। और फिर यही व्यक्ति अगर दूसरे बैंक में जाएगा और उससे कहेगा कि लाओ हमें लोन दे दो, तो फिर ये चेक करेगा उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसका पास्ट कैसा है, तो पास्ट का पता लगाएगा यार ये तो बहुत अच्छा कस्टमर है, तो एकदम कभी इसने जो है वो जो किस्त है वो टाइम पर ही फुलफिल कर देता है, कभी इसने लेट किया ही नहीं, तो बहुत अच्छा कस्टमर है, तो उसको फटाफट लोन सैंक्शन कर दिया जाए। तो जो अच्छा कस्टमर है उसको फटाफट लोन सैंक्शन कर दिया जाना चाहिए, और जो बुरा कस्टमर है उसको लोन सैंक्शन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कौन सा स्कोर आता है अभी, सिबिल स्कोर जो है वो आता है। तो सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो आपका सिबिल स्कोर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए है 2000 में। फिर जो ऋण है, अब ये लोन आपने दिए, चलो ठीक है सिबिल स्कोर वगैरह कर दिए तो इसके मतलब कोई दूसरा नहीं देगा, पर इस बैंक के तो पैसे डूब गए, उसको रिकवरी का क्या करोगे। तो इसलिए कहा कि भाई क्या करें इसमें, लास्ट के अंदर क्या करेगा ये बैंक, क्या करेगा, उस आदमी पे केस कर देगा, और वो केस कहां जाएगा, कोर्ट में। और कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख है मिलॉर्ड, तारीख पे तारीख होती है, उस पर न्याय नहीं मिलता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कोर्ट है उन पर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है, पहले से इतने सारे काम है कोर्ट के ऊपर, पहले से इतने सारे केस हैं कि इनके वाले केस का नंबर आता ही नहीं। अब अगर कोई 40 साल बाद में केस सॉल्व हो जाए और साहब इसको पैसे देने पड़ेंगे, तब तक तो वो आदमी मरमुरा जाएगा और ये बैंक भी हो जाए बंद हो जाए, तो ना तो बैंक रहा है ना आदमी रहा है, और उसके बाद कोर्ट फैसला दे, तो ऐसे फैसले से कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, और वो इसलिए टाइम पर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि जो कोर्ट है, वो जो जज है, उन जज की इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है। जज जो है वो इस बात में इतने एक्सपर्ट नहीं है। जज जो है ये कोई किसने कत्ल किया और किसने नहीं किया, कहां किसने चोरी की नहीं चोरी की, इसमें तो वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, वो तो शक्ल देख के बता देते हैं इसने किया है। परंतु यहां पर किसने पैसे चुकाए और किसने नहीं चुकाए, कितने परसेंट का इंटरेस्ट था, और किसने कौन सा जो चार्ज लगा दिया, और किसने कौन सा क्या कर दिया है, कौन सा जो शर्त है उसका वायलेशन हो गया, ये पता लगाने में जज जो है उसको लगता है बहुत टाइम। तो जज को कहते हैं लो बताओ क्या है एग्जैक्ट बात बताओ, शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। फिर शुरू से बताते हैं, कई दिन तक जज को समझ में आती है, फिर जैसे ही जज को समझ में आता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर उस जज का हो जाता है ट्रांसफर, फिर नए जज साहब आते हैं,
फिर नए जज साहब जो है फिर कहते हैं मेरे को शुरू से समझाओ बेसिक्स, पहले तो ये बताओ ये रेपो होती क्या है, ये बैंक काम कैसे करता है, पहले तो ये बताओ, और ये ब्याज में तुमने इसको पैसे दिए, क्यों दिए पैसे, तुमने क्या लिया था इससे, जो है उस गिरवी क्या रखा था, कैसे रखा था, तो वो फिर वापस समझते हैं, जैसे समझते हैं तो उसके बाद उनका हो जाता है ट्रांसफर। फिर अगर किसी को समझ में आ जाए बड़ी मुश्किलों से समझ में आ जाए तो वो मान लो वर्डिक्ट भी दे दे, जैसे वर्डिक्ट दे तो साहब ये तो सिंगल बेंच ने वर्डिक्ट दिया, फिर वो किसमें चले जाएंगे, एक डिविजनल बेंच के अंदर, अब 2 जज का फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट का फैसला हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और इस तरीके से काम लटकता रहेगा। तो ऐसे तो पैसे डूब जाएंगे, इसलिए क्या करो, इसलिए नरसिम्हन साहब ने कहा कि ऐसी चीजों को रिकवर करने के लिए एक्सपर्ट की बॉडी बनाओ और एक अलग से कोर्ट बनाओ जिसको नाम रखो DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ऋण वसूली अधिकरण, ये वसूली भाई नियुक्त करो, जिनका काम ही क्या है, वसूली का ही काम है इनका, और दूसरा काम इनको आता ही नहीं है। इनको कहो कि काम मर्डर हो गया, पता नहीं भाई मर्डर का, तो बता वसूली किससे करानी है। तो ऐसे जज हो जिनका काम ही क्या हो, वसूली का ही, वो बचपन से यही करते आए हो, ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल वो शकल देखते बता देंगे किसने पैसे जो है वो नहीं चुकाए हैं। तो इसलिए क्या एक विशेषज्ञ न्यायालय बनाओ जिनको क्या नाम दो, DRT लिखो, सिविल लिख दिया था उसके बाद में। हाँ, ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। फॉर डेट रिकवरी स्पेशल कोर्ट शुड बी सेटअप, ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। फॉर डेट रिकवरी स्पेशल कोर्ट शुड बी सेटअप, ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए, जिन्हें DRT कहा जाता है, विच आर कॉल्ड DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उन्नीस सौ 93 में, इन 1993, 1993 में 29 DRT स्थापित किए गए, 29 DRT वर सेटअप। 1993 में 29 DRT स्थापित किए गए, 29 DRT वर सेटअप। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसकी है, नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी जो है उसकी। ये किसी की बाइक है, उसकी चाबी गिरी हुई है, रॉयल इनफील्ड किसके पास में है, और तुम्हारी चाबी नहीं है, तो है तुम्हारे पास में, ऐसे दूसरे की मत ले जाना, किसी की चाबी गिर गई हो, 2 लोगों की गिरी है, पीछे दे आना। हाँ, तो ये तो था नरसिम्हन 1, इसके बाद है नरसिम्हन 2, फिर आए नरसिम्हन 1 की अपार सफलता के बाद में नरसिम्हन 2। नरसिम्हन सेकंड कब स्थापित हुई, 1998, 1998 में, नरसिम्हन सेकंड 1998 में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा नरसिम्हन सेकंड के अंदर कि भाई ये जो अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाने हैं तो क्या करना चाहिए, बैंकों का विलय, इन्होंने कहा बैंकों का क्या किया जाना चाहिए, विलय किया जाना चाहिए, बैंक जो उनको मर्जर कर दो बैंकों का। परंतु मर्जर करते समय ये ध्यान रखो कि जो अच्छे बैंक है उसमें बुरे बैंक का विलय नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा बैंक तो कौन सा, जो कि एकदम लाभ कमा रहा है, उसके एकदम जो लोन वोन है बिल्कुल खास रिस्की नहीं है, उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत कम है। और बुरा बैंक कौन सा है, जिसने रिस्क बहुत ज्यादा ले रखी है और जिसके जो पैसे काफी डूबे हुए हैं, ऐसा जो बैंक है वो तो बुरा बैंक है। और जो अच्छा बैंक है जो कि ढंग से काम कर रहा है, अच्छे प्रॉफिट कमा रहा है, वो अच्छा बैंक है। तो बैंकों को विलय तो करो, परंतु बुरे बैंक को या कमजोर बैंक को जो अच्छा सशक्त बैंक है उसके साथ में विलय उसका नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इस कमजोर बैंकों का क्या करें, अगर इसका उधर नहीं करें तो
तो ये जो भी कमजोर बैंक हैं, अगर कोई कमजोर बैंक है आपका जिसके पैसे डूब गए हैं बहुत ज्यादा, तो इस कमजोर बैंक को नैरो बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। कौन से बैंक में कन्वर्ट कर दो? नैरो बैंक। ये क्या होते हैं नैरो बैंक? नैरो बैंक वो बैंक होते हैं, मतलब होते तो सामान्य जैसे बैंक होते हैं वही होते हैं, परंतु ये जो बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ही ऋण देते हैं। ऋण किसको देते हैं? सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को। भाई ये जो बैंक है, ये बैंक लोन दे रहा है, तो लोन जो है वो सुरक्षित भी दे सकता है या फिर रिस्की भी दे सकता है, जोखिम वाले लोन भी दे सकता है। तो अगर बैंक को ये कह दे कि आप तो रिस्क तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते हो, सारे के सारे लोन किसको देने पड़ेंगे? सुरक्षित। और सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सरकार। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो आप सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हो, इसके अलावा आप और कहीं पर भी पैसे नहीं लगा सकते। ऐसे जो बैंक होते हैं उन बैंकों को क्या नाम देते हैं? नैरो बैंक कहते हैं। उसको बैंक को क्या दे देते हैं? नैरो। जैसे मैंने कहा था ना वो देना बैंक था, और देना बैंक को क्या कहा कि अब उनको कुछ भी देना नहीं है। यानी अब कुछ नहीं देना तो फिर वो अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? वो कहेंगे कि भाई यार हमारी सैलरी है, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए किसको, जो भी पैसा पड़ा है तुम्हारे पास में जहां से भी आया है वो किसको दे दो? सरकारी प्रतिभूतियों में निकाल लो, इससे जितना थोड़ा बहुत आ जाए उससे काम चलो, बाकी खर्चे क्या करो? कम करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बैंक होते हैं इन बैंकों का नाम दिया जाता है नैरो बैंक। तो नैरो बैंक वो बैंक होते हैं जो कि सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण देते हैं। लिखो, बैंकों का विलय किया जाना चाहिए। बैंक शुड बी मर्ज्ड। बैंकों का विलय किया जाना चाहिए। बैंक शुड बी मर्ज्ड। बैंकों का विलय किया जाना चाहिए। बैंक शुड बी मर्ज्ड। परंतु सशक्त बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलय नहीं किया जाना चाहिए। बट अ वीक बैंक शुड नॉट बी मर्ज्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बैंक। परंतु सशक्त बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलय नहीं किया जाना चाहिए। बट अ वीक बैंक should not be merged with a strong bank. कमजोर बैंक का विलय सशक्त बैंक के साथ नहीं किया जाना चाहिए। कमजोर बैंक को, the weak bank should be converted into, कमजोर बैंक को नैरो बैंक में परिवर्तित किया जाना चाहिए। The weak bank should be converted into narrow bank. कमजोर बैंक को नैरो बैंक में परिवर्तित किया जाना चाहिए। नैरो बैंक वे बैंक होते हैं नैरो बैंक वे बैंक होते हैं नैरो बैंक्स आर दोज बैंक्स जो कि सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण देते हैं, विच प्रोवाइड लोन्स ओनली टू सिक्योर्ड सेक्टर। जो कि सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण देते हैं, विच प्रोवाइड्स लोन्स ओनली टू सिक्योर्ड सेक्टर। जो कि सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण देते हैं, अर्थात इट मीन्स गवर्नमेंट, अर्थात सरकार को। सरकार को, इट मीन्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, फिर नरसिम्हन ने तो कहा फिर दूसरी बार कि भाई पहली बात तो ये कि भाई जब नरसिम्हन 1 ने कहा था कि सरकारी बैंक जो हैं उसमें सरकार की हिस्सेदारी को कम करके कितना कर लिया जाए? 51%। और नरसिम्हन 2 जब वापस आए नरसिम्हन साहब तो उन्होंने कहा 51 भी ज्यादा है, इसको कम करके 33% कर दिया जाना चाहिए। कम करके कितना कर दो? 33% जो है वो कर दो। यानी उसका प्राइवेटाइजेशन जो है, जब पहले नेशनलाइजेशन हो गया था अब उनका वापस निजीकरण टाइप का जो है वो कर दिया जाना चाहिए। देखो, सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को कम करके इन गवर्नमेंट बैंक्स गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग शुड बी रिड्यूस्ड टू, सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को कम करके 51% कर दिया जाना चाहिए। सॉरी 51 का 33% कर दिया।
33% कर दिया जाना चाहिए। चेक कर रहा था मैं तुम्हें, जागृत हो कि नहीं हो तुम। हाँ है वो, इसका मतलब जागृत हो, जागृत हो। कम करके 33% कर दिया जाना चाहिए। ऐसे करता रहूंगा मैं बीच बीच में तुम्हें चेक, तुम मुझे करते रहना। 33% कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि बेसल मानकों को अपनाया जाना चाहिए। कौन से मानकों को अपनाओ? बेसल स्टैंडर्ड्स जो अपनाओ। बेसल स्टैंडर्ड कौन जारी करता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहां पर स्थित है वो? स्विट्जरलैंड का शहर है बेसल। और जो बेसल मानक अब तक कितने बार जारी हुए हैं? 3 बार। बेसल 1 कब हुआ था? 1988, सेकंड 2004 और थर्ड 2010। और भारत ने बेसल मानक कब अपनाए? 1999 में। तो 99 किस सिफारिश पर अपनाए? नरसिम्हन की सिफारिश पे अपनाए। देखो, बेसल मानकों को अपनाया जाना चाहिए। बेसल स्टैंडर्ड शुड बी अडॉप्टेड। ये है नरसिम्हन 2। इसके बाद में ये बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, जो बैंक है, बैंक के द्वारा किसी को अगर ऋण दिया जा रहा है तो ऋण कितने ब्याज पर दिया जाना चाहिए? जो आप ऋण दे रहे हो, उस ऋण को जो देते हैं उसको कितने ब्याज पर दे? जैसे अपन ने ये कहा कि बैंक है, वो इधर से लोगों से लोन पैसे लेता है तो 4 से 5% तो उनको ब्याज देता है जमाओं पर, और फिर लोन देता है, और लोन पर 10 से 12% चार्ज करता है। ये तो सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। पर वास्तविक रूप में कितने जो है वो, कितना आपका लोन होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इस इंटरेस्ट को कितना वो, तो इसके लिए पहले जो है कोई गाइडलाइन नहीं थी। और पहले गाइडलाइन नहीं होने की वजह से क्या होता था कि जो बैंक है वो बैंक मतलब ये शक्ल देख के टीका लगाते थे कि आपका जो व्यक्ति आया है वो कैसा है या कौन है, उसके आधार पर ब्याज दर जो है निर्धारित कर देते थे। कि वजह से हो सकता है किसी एक व्यक्ति को ब्याज दर वो 15% पे दे दें, ब्याज दे रहे 15% पे दे रहे हैं, और कोई एक आदमी उसको 5% पे ही दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति को तो 15 पे मिला वही लोन, और दूसरे को कितना मिल गया? 5% ही मिल गया। तो पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सेम कैटेगरी है, सेम कैटेगरी का लोन है, तो एक ही जैसी इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए थी। परंतु उस समय इतना कोई रेगुलेशन था नहीं, और रेगुलेशन ना होने की वजह से बैंक जो अपनी मर्जी से ऐसा डिसीजन ले लेते थे। अब मर्जी का तो मर्जी मतलब क्या है? ऊपर से कोई फोन आया हुआ है, अगर सरकारी बैंक है, लोन देना है, ऊपर से जिसका फोन आया हुआ है उसको 5% दे दो। ये नेताजी का रिश्तेदार है, इसको तो 5% दो। और ये किसी का रिश्तेदार नहीं है, इसको 15% दो। नहीं, रिश्तेदार नहीं होने का जो है उसको खामियाजी तो भुगतना पड़ चाहिए। उसके रिश्तेदारों ने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं अपने जीवन में, तो इसलिए उसको रिश्तेदारी क्या पड़ी? महंगी। तो ये 15% दे रहा है, इसको 5%, तो ये पर ये बैंक के लिए तो नुकसान ही है। बैंक के दृष्टिकोण से देखा जाए, अब नेताजी के दृष्टिकोण से तो ठीक है, पर बैंक के दृष्टिकोण से तो ये नुकसान है। और ये नुकसान है तो जो है वो दीर्घ काल के अंदर ऐसे बैंक फिर ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। तो इसलिए जो आरबीआई है, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की, और गाइडलाइन जारी करके कहा 2004 में कि आपको जो लोन देने होंगे वो उसके लिए एक बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी। क्या निर्धारित करनी पड़ेगी? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब है कि इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो भी बैंक होता है उस बैंक के 2 प्रकार के कस्टमर होते हैं। एक तो होते हैं प्राइम कस्टमर, और एक होता है सब प्राइम। प्राइम कस्टमर्स तो कौन से होते हैं? प्राइम कस्टमर वो होते हैं जो कि बैंक के सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, मोस्ट क्रेडिबल है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो कस्टमर होते हैं उनको तो क्या कहते हैं? प्राइम। सबसे जो इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं वो तो है प्राइम। और सब प्राइम कस्टमर्स, सब प्राइम कस्टमर वो हैं जो हैं जोखिम वाले। जो कैसे हैं? जोखिम के जो कस्टमर्स हैं उनको क्या कहते हैं? सब प्राइम कस्टमर कहते हैं। तो आप प्राइम कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर भी दे सकते हो, पर जिनका जोखिम ज्यादा है, जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जिसका जोखिम ज्यादा है, तो उसको आपको इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा? उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपका कोई अब स्प्रिंग बोर्ड है, अब स्प्रिंग बोर्ड का जो खाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है,
अब बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को पता है कि साहब इनकी ऐसे फीस आती है, जाती भी है, आती जाती रहती है, तो इनका मतलब इनका ट्रांजेक्शन होता रहता है और इनका पैसा जो है वो आता रहता है। अब अगर स्प्रिंग बोर्ड जो है वो जाए कि साहब हमको पैसों की जरूरत है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, तो हमें पैसे दे दो, तो ये इसको देने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे तैयार? क्योंकि वो उनका प्राइम कस्टमर है। प्राइम कस्टमर है क्योंकि उन्होंने अपना खाता यहाँ पर खोल रखा है। अगर आप इसको नहीं दो तो ये कल को किसी दूसरी जगह जाके पीएनबी में अपना बैंक खाता खुलवा लेगा और पीएनबी में खाता खुलवा लेगा, सारा पैसा उधर जमा होने लगेगा, उधर जमा लगेगा तो इधर से पैसा चला गया, तो इनको तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपके एक तो होते हैं प्राइम कस्टमर और दूसरे होते हैं सब प्राइम कस्टमर। अब स्प्रिंग बोर्ड तो चलो भाई फिर भी और छोटी संस्था है, और बड़ी कोई बहुत बड़ा संस्था हो, और अगर बहुत बड़ी कोई जो है वो फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस है जिसके यूं 100-200 करोड़ के ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं एक एक दिन के अंदर। अब 200 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, फिर 200 करोड़ रुपए जो उसका खर्चा हो रहा है, फिर और जमा हो रहे हैं, फिर और खर्चे हो रहे हैं, तो इस तरीके अगर बहुत बड़े लेन देन हो रहे हैं तो ऐसे जो लोग होंगे वो उस बैंक के क्या होंगे, प्राइम कस्टमर्स होंगे। और प्राइम कस्टमर्स को जो वो इंटरेस्ट देंगे वो क्या देंगे, थोड़ा कम देंगे। और जो सब प्राइम होंगे चलते फिरते यूं ही आगे दिखा रहे यार बैंक की ब्रांच खुली हुई है, चलो इसके अंदर चलते हैं, भाई साहब लोन दे दो, कौन हो तुम, कहां से आए हो, तो ये तो मैं आया तो यूं चलता फिरता ही आया हूं, पर मैं भी यूं जो है तुम्हारे पैसे लेकर भागूंगा नहीं, मेरे भी एक बैंक है जिसके अंदर मेरे भी 100-200 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो भाई पड़े होंगे तुम्हारे किसी बैंक के अंदर 100-200 करोड़ रुपए, हम तो तेरे को नहीं जानते इतना, चलो उस बैंक वालों से पूछ भी लेंगे कि भाई है क्या वास्तव में, और बैंक वालों ने कह भी दिया तो भी इस व्यक्ति को उतना ज्यादा जो है वो भाव नहीं दिया जाएगा, उस कम से कम उससे तो कम ही भाव दिया जाएगा जिसका खाता आपके यहां पर ही है। क्योंकि जिसका खाता यहीं पर है तो उसके पैसे तो आपके पास में पड़े हैं, उनको तो कभी भी ले सकते हो, और जिसके खाते कहीं और पैसे पड़े हैं तो वो आपके लिए इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं। और एक व्यक्ति जिसका कहीं कोई पैसा है ही नहीं, वो पहली बार ही आया नया नया लोन लेने के लिए कि भाई मेरी तो नौकरी लगी है, जस्ट आरएएस बन गया मैं, और 35,000 रुपए जो है वो आते हैं खाते में, हैं शुरुआत के अंदर, बाद में तो और आते नहीं भाई, फिर खाते में नहीं आते पैसे सिर्फ निकलवा लेते हो तुम इसलिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका तो खाता तो चल नहीं रहा, खाता नहीं चल रहा तो क्या होगा, वो बैंक के लिए इतना प्राइम कस्टमर नहीं है, प्राइम कस्टमर नहीं है तो बैंक उसमें जोखिम है, जोखिम है तो उसको क्या देगा, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा। तो इन्होंने आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन जारी करके कहा कि जो भी आपकी ब्याज दर हो वो ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, तो एक तो प्राइम रेट जो कि प्राइम कस्टमर को दे रहे हो, प्लस उसमें जितना रिस्क है वो इसमें क्या होना चाहिए, वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो क्या करो, प्राइम रेट प्लस रिस्क के आधार पर जो है वो आप उसको दो, तो यानी प्राइम रेट से नीचे फिर कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पहली बार इन्होंने जो आपकी इंटरेस्ट रेट ब्याज दर देने के लिए जो गाइडलाइन जारी की वो कौन सी जारी की थी, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। लिखो, देखिए इसको हेडिंग डालो, ब्याज दरों के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों के लिए दिशा निर्देश। आरबीआई समय समय पर बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है। आरबीआई गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू बैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरबीआई समय समय पर बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है। आरबीआई गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू बैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसके आधार पर वे अपने ब्याज दरों का निर्धारण कर सके, सो दैट दे कुड डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट ऑन दैट बेसिस, जिसके आधार पर वे अपनी ब्याज दरों का निर्धारण कर सके, जिसके आधार पर वे अपनी ब्याज दरों का निर्धारण कर सके। जो अपनी ब्याज दरों का निर्धारण ऑन दैट बेसिस, क्या लिख लिया अब तक, इंटरेस्ट रेट ऑन दैट बेसिस, दे कुड डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट ऑन दैट बेसिस।
तो सबसे पहला है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, उसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से लिख। इसकी शुरुआत 2004 में हुई। इट वाज इशूड इन 2004। बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर, कब जारी किया गया? ये 2004 में, इशूड इन 2004। द इंटरेस्ट रेट दैट इज ऑफर्ड टू इट्स बेस्ट कस्टमर, वह ब्याज दर जो उसके सर्वोत्तम उपभोक्ता को दी जाती है। वह ब्याज दर जो बैंक के सर्वोत्तम उपभोक्ता को दी जाती है। इंटरेस्ट रेट विच इज ऑफर्ड टू बैंक्स बेस्ट कस्टमर, जो बैंक के सर्वोत्तम उपभोक्ता को दी जाती है, वह प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। वह प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। वह प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। प्राइम लेंडिंग रेट मतलब PLR। और सामान्य ब्याज दर कितनी होगी? बस ये वाला लिख लो, सामान्य ब्याज दर बराबर PLR, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू सामान्य ब्याज दर बराबर PLR प्लस रिस्क। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बराबर PLR प्लस रिस्क। ठीक है, तो बैंक के दो प्रकार के कस्टमर होते हैं, एक तो कौन से होते हैं? प्राइम, और दूसरे कौन से होते हैं? सब प्राइम। जैसे यूएसए के अंदर 2007-8 में एक आर्थिक मंदी आई थी, मतलब एक क्राइसिस आ गया था यूएसए के बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, और उस क्राइसिस को नाम दिया जाता है सब प्राइम क्राइसिस। उसको क्राइसिस क्या कहते हैं? सब प्राइम। वो जो संकट था, आर्थिक संकट, उसको सब प्राइम संकट जो है वो कहते हैं। अब सब प्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि यूएसए के बैंक जो है जोश में आ गए थे उसमें। उससे पहले जो है यूएसए बहुत भाई तेज गति से आगे बढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो यूएसए के बैंक आ गए जोश में, और जोश में आ गए तो उन्होंने बैंकों ने कहा कि भाई यूएस के अंदर अगर कोई बंदा रह रहा है और वो काम कर रहा है तो इसका मतलब वो सफल ही होगा। कोई भी बिजनेस अगर यूएस में लग रहा है, अगर कोई किसी प्रकार का छोटा मोटा भी काम कर रहा है तो मतलब सफल ही होगा, वो असफल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए किसी को भी लोन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बहुत सारे लोन जो है वो किसको दे दिए? सब प्राइम कस्टमर्स को दे दिए। जो सब प्राइम कस्टमर थे, जो कि जोखिम वाले कस्टमर थे, उनको बहुत सारे लोन दे दिए गए, और ऐसे करते करते जो है वो खूब सारे लोन हो गए। परंतु एक समय आया जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आने लगी, और अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था में के अंदर तो ग्रोथ और मंदी के साइकिल हमेशा चलते रहेंगे। अर्थव्यवस्था में पहले ग्रोथ होती है, फिर क्या होती है? वापस मंदी आती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मंदी आती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मंदी होती है। तो इस तरीके की साइकिल जो अर्थव्यवस्था में चलती रहती है, और बैंकों को लगा कि ये ग्रोथ हमेशा ही होती रहेगी। और जैसे ही वो मंदी आई, जैसे स्थिति थोड़ी खराब हुई तो कई सारे लोग जो उनके बिजनेस बंद हो गए, बिजनेस बंद हुए या बिजनेस फेल हुए तो उन्होंने बैंक के जो किस्तें जमा करानी बंद कर दी। किस्तें जमा करानी बंद कर दी तो बैंकों ने कहा लाओ हमारे पैसे दो, तो ऐसा पैसे तो नहीं है। फिर इन बैंकों ने जब पैसे दिए थे तब उन्होंने उनके घर गिरवी रखे थे, जमीन जो है वो गिरवी रखी थी, तो उनका पैसे दे दो वरना तुम्हारी जमीन बेच देंगे हम, तो बेच दो। अब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है वो मना कर दिया पैसे देने से कि भाई हम तो नहीं दे रहे, और उन्होंने कहा हम जमीन बेच देंगे। जमीन तो फिर वो आए, बैंकों को लगा कि चलो ठीक है जमीन बेच देते हैं, और वो जमीन बेचने के लिए जमीन वाले मार्केट में जैसे आए रियल एस्टेट में, तो कोई खरीदारी नहीं है। आपके पास जमीन बेचने के लिए तो खूब सारी है, परंतु कोई खरीद ही नहीं रहा, खरीदार है ही नहीं। खरीदार नहीं है, इसकी वजह से और ज्यादा हालत खराब होने लगी, और धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो ब्याज देने जो है वो बंद कर दिया, कहा कि उनके पास में कोई जोर नहीं है, बेच भी नहीं सकते अपनी जमीनों को। तो इसलिए फिर बैंकिंग क्षेत्र जो है उनका कई एक दो बैंक जो डूब गए इसके चक्कर में। सबसे पहले एक बैंक था वहां का लेमन ब्रदर्स, वो लेमन ब्रदर्स बैंक जो है वो डूबा,
और वो डूबा और उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरा जो अमेरिका का आर्थिक तंत्र है या वित्तीय तंत्र है, पूरे वित्तीय तंत्र के अंदर ही संकट आ गया कि पूरे वित्तीय तंत्र में ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पर जो बैंक है उन बैंकों को अब ऐसे लगने लगा कि बड़े बड़े बैंक जो है वो अब डूब जाएंगे। फिर अमेरिका की सरकार ने थोड़ा हस्तक्षेप किया और किसी तरीके से उस बैंकिंग तंत्र को बचाया। ठीक है, तो ये जो 2007-8 के अंदर ये संकट आया था, तो 2007-8 का संकट था वो कैसा था, वहां का सब प्राइम क्राइसिस था। तो सब प्राइम क्राइसिस क्यों था, क्योंकि लोन किसको दिए थे, सब प्राइम को। अब क्या हुआ कि जैसे भारत के अंदर ये निकाल दिया उन्होंने 2004 में बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, परंतु ये डिसाइड तो कर दिया कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होनी चाहिए, पर इसको आरबीआई ने बाध्यकारी नहीं बनाया, ऐसे गाइडलाइन जारी की कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा कोई जो है वो बाध्यकारी नहीं बनाया कि वह करना पड़ेगा ही। तो कुछ बैंक तो इसका पालन कर लेते थे और कुछ बैंक जो है वो पालन नहीं करते थे। तो अभी भी मतलब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करने के बाद भी कुछ लोग जो है वो पालन नहीं कर रहे थे। फिर आरबीआई ने 2010 के अंदर एक और नई व्यवस्था शुरू की और उसको कहा गया बेस रेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम हुआ, बेस रेट, आधार दर। और यह कहा कि कोई भी लोन इस आधार दर से कम तो दिया ही नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार का एक भी लोन तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस आधार दर से कम हो, क्योंकि कम से कम कोई भी अगर आप बेस रेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो कम से कम आप ये तो देखो तुम्हारी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, जो तुम्हारी कॉस्ट है उस कॉस्ट से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना ब्याज। भाई कॉस्ट क्या होगी, किसी भी बैंक की कॉस्ट क्या होगी, ये बैंक है तो बैंक की कोई जो है वो उसकी बिल्डिंग होगी, तो उस बिल्डिंग का कोई किराया जाता होगा, बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे एसी लगे होंगे, वहां पर जो है टेबल कुर्सियां लगी होगी तो उसका खर्चा लगा होगा, इसको कहते हैं ऑपरेशंस के खर्चे, बैंक के संचालन का खर्चा होता होगा। बैंक के अंदर ये जमाई हो रही है, इन जमाओं के ऊपर क्या दे रहे हो आप, ब्याज दे रहे हो, तो ये भी आपका कॉस्ट है। इसके अलावा आपके जो बैंक है उनके लोगों की सैलरी जा रही है, ये भी आपकी कॉस्ट है। फिर आपने कुछ पैसा जो है वो यहां पर दे रखा है सीआरआर में, इसमें दे रखा है सीआरआर में दे रखा है, जिसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो ये तो पैसा ऐसा ही चला गया, तो इसको भी कॉस्ट के रूप में कैलकुलेट करो। और ऐसे करके ये कहा कि सब आपकी जो लागत है उस लागत से नीचे जो है आप कोई भी ब्याज नहीं दोगे, और उसको क्या नाम दिया गया, बेस रेट। तो क्या दिया गया, बेस रेट या आधार दर। ये कब हुआ, 2010 में। लिखो देखिए, बेस रेट, सिर्फ बेस रेट सिस्टम, बेस रेट आधार दर, बेस रेट ब्रैकेट में लिख लो आधार दर। दो 2010 में जारी किया गया, इट वॉज इशूड इन 2010, 2010 में जारी किया गया, इट वॉज इशूड इन 2010। यह वह न्यूनतम दर है, इट इज दैट मिनिमम रेट, ये वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे कोई ऋण नहीं दिया जा सकता, बिलो विच नो ऋण नो लोन कुड बी एक्सटेंडेड। हिंदी अंग्रेजी मिक्स हो गया, जिसके नीचे कोई भी ऋण नहीं दिया जा सकता, बिलो विच नो लोन कुड बी एक्सटेंडेड, नो ऋण कुड बी एक्सटेंडेड। इसकी गणना लागत के आधार पर की जाती है, इट यूज टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसकी गणना लागत के आधार पर की जाती थी, इट यूज टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसकी गणना लागत के आधार पर की जाती थी। ठीक है, तो ये है कौन सी, बेस रेट। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहां पर जो इसमें एक दिक्कत आई बेस रेट में, क्या दिक्कत आई थी, देखो सामान्यतः अपन समझते ही है कि बैंक है, बैंक के पास में जमाई आई और बैंक जो है वो लोन देता है। लोन कितने देगा, ये किस रेट पे देगा, बेस रेट। बेस रेट से तो ये तो न्यूनतम हो गया और इससे प्लस ही होगा, मतलब बेस रेट से ज्यादा ही होगी।
और ये बेस रेट की गणना किससे होगी? ये होगी कॉस्ट से। ये किससे होती है? कॉस्ट से गणना होती है। अब आरबीआई जो है वो अपनी जब मौद्रिक नीति जारी करती है, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है तो इसका मतलब क्या, किसको चेंज करती है? रेपो रेट को। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको चेंज करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? रेपो रेट। अब सपोज करो आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जो है उसको बढ़ा दिया। आरबीआई ने रेपो रेट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। तो थियोरेटिकली अपन समझते क्या है इसको? अपन तो ये समझते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, इसका मतलब बैंक जो है उनको लोन महंगे मिलेंगे, और महंगे मिलेंगे तो बैंक क्या करेंगे? बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन लेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे तो फिर जो आपकी जो तरलता है वो कम हो जाएगी। ये तो सिंपल लॉजिक है। पर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पा रहा था। आरबीआई क्या कर रहा था? आरबीआई ने जैसे अपनी इस रेपो रेट को बढ़ा दिया, और आरबीआई ने घोषणा कर दी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी की, जब रिव्यू हुआ उसके बाद उसने कहा कि हम रेपो रेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब जैसे रेपो रेट बढ़ गई तो इसका मतलब सभी मार्केट के जितने एनालिस्ट होंगे, जो भी एनालिसिस करने वाले होंगे, वो सब कहेंगे अच्छा अब तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी, अब ब्याज दरें जो है वो बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेगी। परंतु बैंक जो है उन्होंने, बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाया ही नहीं। ये जो बैंक है वो ब्याज दरों को बढ़ा ही नहीं रहे। तो बैंकों से पूछा कि यार तुम बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? आरबीआई ने एक दिन बुलाकर इनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं बढ़ाते हो? हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तुमने उसको बढ़ाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हम जो अपनी ब्याज दरें कैलकुलेट करते हैं वो आपके रेपो रेट के आधार पर कैलकुलेट ही नहीं करते। हम तो किसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं? बेस रेट पे। आपने कहा था बेस रेट से के आधार पर कैलकुलेट करो। हमने तो ऐसा निर्धारित कर रखा है, जैसे हमें होम लोन देना है तो हमने ये निर्धारित कर रखा है बेस रेट प्लस 4% पर होम लोन देंगे। ऑटो लोन देना है तो हमने निर्धारित कर रखा है बेस रेट प्लस 3% पर ऑटो लोन देंगे। हमको अगर ये पता हो कि भाई आपको कोई पर्सनल लोन देना है किसी व्यक्ति को तो बेस रेट प्लस 6% पर पर्सनल लोन देंगे। तो हमने तो सारे के सारे किस पर निर्धारित कर रखे हैं? बेस रेट पर निर्धारित कर रखे हैं। और बेस रेट खुद जो है वो किसके आधार पर होती है? हमारी कॉस्ट के आधार पर होती है। तो हमारी कॉस्ट के आधार पर निर्णय होगा। इसके अंदर आपका वाला जो फैक्टर है वो तो है ही नहीं। तो आप भले ही अपनी रेपो रेट को ऊपर नीचे करते रहो, हम जो है वो इसको इतना ज्यादा चेंज नहीं कर पाते। पर अब चलो ठीक, आप कह रही हो, आपने बुलाकर ही कह दिया है तो हम जरूर थोड़ा कम कर देंगे। मतलब पर ये इसका मतलब ये हुआ, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं हुआ काम। एक तो होना ऐसा चाहिए था कि आरबीआई जैसे इसको ऊपर करता वैसे यहां पर भी ऊपर हो जाता, और आरबीआई इसको नीचे करता तो ये भी क्या हो जानी चाहिए थी? नीचे। ये कब होगा? ये तब होगा जब इस बेस रेट का जो कैलकुलेशन हो रहा है, इस बेस रेट का कैलकुलेशन हो रहा है, ये किसमें हो रहा है? कॉस्ट। और इस कॉस्ट के अंदर रेपो रेट भी है। अब अगर रेपो रेट बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो बैंक रेट, ये बेस रेट भी बढ़ गई, और बेस रेट बढ़ गई तो फिर ये जो ब्याज दरें हैं वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर रेपो रेट कम हो गई तो इसका मतलब कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो बेस रेट कम हो गई, बेस रेट कम हो गई तो ये ब्याज दरें भी कम हो जाएगी। इसका मतलब आरबीआई को ये बात समझ में आई कि अच्छा तो ये करना है अपन को कि ये जो बेस रेट है इसका जो कॉस्ट है उसमें किसको शामिल करो? रेपो रेट को जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। ये बात कब समझ में आई आरबीआई को? 2016 में। ये बात कब समझ में आई है? 2016 के अंदर। क्योंकि पहली वाली व्यवस्था में दिक्कत क्या थी कि आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति जारी की जा रही है वो बैंकों के द्वारा जो है वो उसके अंदर उसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किए जा रहे। क्यों नहीं किए जा रहे? क्योंकि अब बैंक जो जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर रेपो रेट का कोई फैक्टर था ही नहीं, किसी प्रकार का कारक के रूप में वह रेपो रेट को ले ही नहीं रखा था, इसलिए सीधे सीधे ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं होता था। फिर आरबीआई ने 2016 के अंदर एक और व्यवस्था लेके आए जिसको कहा गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, एमसीएलआर। इस मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड जो लैंडिंग रेट है इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने ये कहा कि जो आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर रेपो दर जो है उसको भी शामिल कर लिया जाए। रेपो दर को शामिल करोगे तो मौद्रिक नीति जो उस मौद्रिक नीति बहुत अच्छे तरीके से बाजार में परिलक्षित हो जाएगी। देखो हेडिंग अगला डालो इसमें, एमसीएलआर। एमसीएलआर इसे 2016 में जारी किया गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट।
मार्जिनल कॉस्ट बेस, इसे 2016 में जारी किया गया। देखो, इट वाज इशूड इन 2016, इसे 2016 में जारी किया गया। इसके तहत लागत की गणना करते समय, अंडर इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, इसके तहत लागत की गणना करते समय व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, लागत की गणना करते समय रेपो दर को भी शामिल कर लिया गया। रेपो रेट वाज आल्सो इंक्लूडेड, रेपो दर को भी शामिल कर लिया गया। रेपो रेट वाज आल्सो इंक्लूडेड, जिससे कि रेपो दर को भी शामिल कर लिया गया, जिससे कि मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी कुड बिकम मोर इफेक्टिव, जिससे कि मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी कुड बिकम मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो मौद्रिक नीति इससे क्या हो गई, अब इफेक्टिव हो गई। कैसे इफेक्टिव हो गई? तो बैंक जो लोन दे रहे हैं उस लोन का ब्याज, और ब्याज क्या है, बेस रेट। अब बेस रेट की जगह इसको नाम दे दिया MCLR, इसको नाम क्या दे दिया, MCLR। MCLR प्लस कितना रखना आपको, 2% रखना है, 3% रखना है, अलग अलग के लिए। और ये जो MCLR की गणना हो रही है, इसके अंदर किसको शामिल कर लिया, रेपो दर को, रेपो रेट को शामिल कर लिया। अब अगर RBI अपनी रेपो दरों को बढ़ाए, रेपो दरों को बढ़ाएगी तो रेपो दर बढ़ गई है, रेपो दर बढ़ गई तो MCLR भी बढ़ जाएगी, और ये बढ़ गई तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर RBI ने इसको कम कर दिया तो ये भी कम हो जाएगी, तो ये भी कम हो जाएगा, तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो ये जो है सिंपल इस तरीके से जो है वो कार्य होगी। पर इसमें फिर एक और दिक्कत आ गई, और उसको और मतलब अभी भी प्रभावी बनी तो सही थोड़ी बहुत तो, पर फिर भी कुछ और समस्याएं जो है वो भी रहेगी। अब समस्या क्या रहेगी, अब ये है कि ये जो MCLR कैलकुलेट हो रही है, इसमें रेपो रेट है प्लस और जो लागत है वो भी है। बैंक की और लागत कौन सी है, बैंक के संचालन का खर्च, जो ब्याज दे रहा है वो खर्च, RBI को जो पैसे दिए हैं उसका लागत, ऐसे करके जो है वो और कॉस्ट भी है। अब इधर सपोज करो जो RBI है, उस RBI ने अपना जो रेपो रेट है वो 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया। 4% से बढ़ाकर कितना किया, 5%, 1% बढ़ा दिया। 1% बढ़ाया, इसका मतलब ये चाहते हैं कि जो ब्याज दरें हैं उन ब्याज दरों में कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए, 1%। और इधर ये जो बैंक है, बैंकों ने अपनी MCLR के अंदर, MCLR पहले 10% होती थी, इसको बढ़ाकर 12% कर दिया। यानी इन्होंने अपने ब्याज दरों में कितना परिवर्तन कर दिया, 2 का। यानी आप जो, इसका मतलब ज्यादा लिक्विडिटी कम कर दी, इतनी भी नहीं करनी थी। हमने अगर सोच समझ के कहा कि 1% का इंक्रीमेंट होना चाहिए तो 1 ही होना चाहिए। 1 से ज्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब तुम ज्यादा ही एडवांस काम कर रहे हो, इतना एडवांस काम करने की जरूरत नहीं है। तो और ऐसा क्यों कर रहे हो, इनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तो 1% बढ़ाया, तुमने 2% क्यों बढ़ा दिया। तो इन्होंने कहा साहब ऐसा है कि हमारा जो MCLR कैलकुलेट होता है ये अकेले आपके इस पर कैलकुलेट नहीं होता है, साथ साथ में हमारी दूसरी कॉस्ट भी है। 1% तो इसमें बढ़ गया और 1% हमारे इसमें बढ़ गया, तो हमारा टोटल तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2% हो गया। अब हम इसमें क्या करें, तो आपकी गाइडलाइन, हम तो गाइडलाइन मान रहे हैं, अब आपकी गाइडलाइन में गड़बड़ है इसका मतलब। तो फिर RBI को समझ में, हाँ यार ये बात तो है कि इसकी वजह से जो क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो क्या करें, इसको हटा देते हैं, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दो, हटा ही दो। और ये बात कब समझ में आई इनको, 2019 में। ये बात कब समझ में आई है, 2019 में। कि भाई 2010 में शुरू हुए थे कि कॉस्ट के आधार पर करो, कॉस्ट के आधार पर करो, पर कॉस्ट के आधार पर करने से जो है कई सारी समस्याएं
आती गई, और जैसे जैसे समस्याएं आती गई वैसे वैसे आरबीआई को समस्याएं तो उन्होंने सोचा कि यार क्या करें क्या करें, तो इन्होंने 2019 के अंदर एक और नई व्यवस्था जो है वो लेके आए। जैसे एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था 2016 का ही है। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, कोषों की सीमा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर का उद्देश्य है। व्हाट इज और आर द पर्पस और पर्पसेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर अनाउंस्ड बाय आरबीआई। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। These guidelines help in improve transparency in methodology followed by banks for determining the interest rate on advances। उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा आ जाए कि भाई एकदम से आप सारी सारी बताओ आपकी कितनी कितनी कॉस्ट जो है वो लगती है, तो रेपो वाली जो है उसको भी आप क्या कर रहे हो उसमें शामिल करो, तो ट्रांसपेरेंसी से क्या होती है, बढ़ती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन सही है। दूसरा, ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to both borrowers as well as banks। तो दोनों के लिए न्याय संगत का निर्धारण कौन कर रहा है, आरबीआई। भाई आरबीआई सोच रही है कि आरबीआई देख रही है कि यार न्याय संगत तो तब होगा जब ब्याज दरें क्या हो, बढ़े, ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। तो आरबीआई ने अपनी रेपो दर को बढ़ा दिया, और रेपो दर को बढ़ाकर जो है बाकी बैंकों को संकेत दिया कि हमने रेपो दर बढ़ा दी तो तुम भी अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दो। और बैंक जो है वो बैंक पहले बढ़ा ही नहीं रहे थे और नहीं बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब न्याय संगत नहीं है ये, खुद बैंक के लिए भी ये नुकसानदायक है और जो बोरोवर है उसके लिए भी नुकसानदायक है, दोनों के लिए जो है नुकसानदायक। तो इसलिए क्या करें, अब आरबीआई ने जब एमसीएलआर जारी कर दिया तो इसका मतलब जैसा आरबीआई यहां कर रही है वैसा ही बैंक क्या करेगा, इस तरफ भी करेगा इस तरफ भी करेगा। तो यानी बैंक के जो जो भी बोरोवर्स होंगे और बैंक खुद, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, न्याय संगत हो जाएगी, क्योंकि न्याय संगतता का निर्धारण कौन करेगा, आरबीआई। भाई बैंकों का भला तो कौन जानता है, उनका बॉस आरबीआई जो है वो उनका भला जानता है, तो इसलिए न्याय संगतता जो है वो है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। बिल्कुल, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये किसी ने पूछा है कि बेस रेट अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होती है क्या, ऑनलाइन पूछा है, किसने पूछा है, राम। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होगी क्या बेस रेट, अलग अलग ही होगी ना। भाई एक बैंक है उसने एमआई रोड पर अपनी ब्रांच खोल रखी है तो उसका किराया ज्यादा लगेगा, और एक ने जो है किसी गांव के अंदर खोल रखी है उसका किराया कम लगेगा, तो उसकी कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी, कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी, तो बेस रेट क्या होगी, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट लेटेस्ट जो है वो यही है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। Unlike MCLR, which is internally determined, MCLR के विपरीत जो आंतरिक रूप से निर्धारित होता है, MCLR के विपरीत जो कि आंतरिक रूप से निर्धारित होता है, MCLR तो आंतरिक रूप से निर्धारित होता है, यह बाहरी रूप से निर्धारित होता है। Unlike MCLR, which is internally determined, it is externally determined। यह बाहरी रूप से निर्धारित होता है, it is externally determined।
यह बाहरी रूप से निर्धारित होता है। आरबीआई ने बैंकों को 4 बाहरी बेंचमार्कों में से किसी एक को चुनने का विकल्प या बाहरी बेंचमार्कों में से चुनने का विकल्प दिया। आरबीआई हैज ऑफर्ड बैंक्स द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म्स। चार बाहरी बेंचमार्कों में से चुनने का विकल्प दिया है। आरबीआई हैज ऑफर्ड बैंक्स द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। अब ये 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है? इससे पहला तो आरबीआई की रेपो रेट, या तो आप रेपो रेट के आधार पर निर्धारित कर लो। दूसरा, 91 दिन के टी बिल यील्ड, ट्रेजरी बिल यील्ड। अब ये टी बिल यील्ड क्या होती है? जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, अभी के लिए सिर्फ लिख लो इसको। 91 दिन टी बिल यील्ड, एक 182 दिन टी बिल यील्ड। टी बिल यील्ड के लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पर्चे भी लिखे वो जो ये क्या है टी बिल, कृपया हमें समझाइए, और कृपया भी नहीं लगाओगे, फटाफट समझाइए। तो फटाफट नहीं समझाएंगे, समय आने पर ही समझाएंगे। 91 दिन टी बिल यील्ड, 182 दिन की टी बिल यील्ड, या कोई अन्य बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट और एनी अदर बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट। कोई अन्य बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट एज डेवलप्ड बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई दूसरी अन्य बेंचमार्क भी ले सकते हो। अन्य बेंचमार्क जैसे मिबोर ले लिया आपने, तो उस मिबोर को भी क्या बनाया जा सकता है? बेंचमार्क बनाया जा सकता है। On any other benchmark market interest rate as developed by the Financial Benchmark India Private Limited। तो कोई अन्य बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इस पे जो यह सुनिश्चित करेगा, इट विल एंश्योर यह सुनिश्चित करेगा, ये वाला मत लिखना, इट विल एंश्योर यह सुनिश्चित करेगा कि नीतिगत दरों में कटौती का निर्णय, दैट पॉलिसी rate cut decision will reach borrowers faster। यह सुनिश्चित करेगा कि नीतिगत दरों में कटौती का निर्णय कर्जदारों तक तेजी से पहुंचे। नहीं, ये तो एग्जाम्पल लेके बताया है, तुम्हें समझाया है, एक केस है वो। भाई देखो, एमसीएलआर में क्या प्रॉब्लम है? जो एमसीएलआर है वो एमसीएलआर कैसे निर्धारित होता है? एमसीएलआर दो बातों में निर्धारित होता है, एक तो उसकी कॉस्ट कितनी है और प्लस रेपो रेट कितनी है। अब ये जो कॉस्ट होगी
ये हर बैंक की क्या होगी, अलग अलग। तो देखो आरबीआई ये चाहता है कि पूरे बाजार की लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो बाजार की लिक्विडिटी को कितनी कम करनी है और कितनी लिक्विडिटी छोड़नी है। और लिक्विडिटी को कम करने, उसको जो बढ़ाने का काम आरबीआई किसके माध्यम से करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। पर अल्टीमेटली बाजार में लिक्विडिटी को भेजने का काम और उससे बाहर लाने का काम कर रहा है बैंक। अल्टीमेटली जो लोग हैं उनके लोगों के हाथ से पैसा बाजार में लेके आना, मतलब उसके जो है वापस लाना और लोगों के हाथ में पैसे देना, ये काम तो कौन करता है, बैंक। अब आरबीआई ने सोचा कि भाई इसमें 1% का इंक्रीमेंट ही होना चाहिए एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो 1% का होना चाहिए। तो अब कोई एक बैंक वन है, उसका एमसीएलआर कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी कॉस्ट प्लस उसकी रेपो रेट। अब सपोज करो कि इसमें उसकी कॉस्ट लग रही है 1% और रेपो रेट भी कितनी बढ़ी है, 1%। इसकी कॉस्ट भी 1% बढ़ गई और रेपो रेट भी 1% बढ़ गई। तो इसका मतलब ये अपनी एमसीएलआर को कितने से बढ़ा देगा, 2%, जबकि आरबीआई चाहता था 1% से बढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ कोई बैंक टू है, वो क्या कर रहा है, उसकी एमसीएलआर वो अलग से कैलकुलेट करेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो भी अपनी कॉस्ट प्लस रेपो रेट। सपोज करो उसकी कॉस्ट जो है वो 1% से कम हो गई, -1%, और रेपो रेट हमने 1% से बढ़ा दी, यानी इसकी एमसीएलआर में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा, जैसा और इसकी कॉस्ट कम और बढ़ी और कम क्या क्यों हुई। कोई एक बैंक हो सकता है जो थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर दे, वो कह दे कि साहब हमने बहुत सारे इंप्लॉय रख रखे हैं, इतने सारे इंप्लॉयज की जरूरत नहीं है, थोड़ों को निकाल दो बाहर, बाहर निकाल दिया। हमने बहुत सारी ब्रांच खोल रखी है, एक ब्रांच जो है गोपालपुरा बाईपास में, ये जो रोड है इसमें 4 ब्रांच खोल रखी है, तो 4 ब्रांच की क्या जरूरत है यार, एक ही ब्रांच रखो। एक ब्रांच रखोगे तो उसमें इंप्लॉयज कम होंगे, ये उसका किराया भी कम लगेगा। आपने एटीएम खोल रखे हैं, खूब सारे एटीएम बना रखे हैं, तो इतने सारे एटीएम की क्या जरूरत है, एक ही एटीएम रख लो। तो कोई एक बैंक हो सकता है वो अपनी कॉस्ट को कम करे, और एक बैंक का जो जोश में कि अपने तो सब जगह दिखने चाहिए, जहां भी है वो अपनी अपने दिखे, तो अपनी दिखेंगे तो वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा दे कि भाई अपने तो जो है वो ऐड करवाओ, ऐड करवाने के लिए शाहरुख खान को बुला के लाओ, और फ्रंट पेज पर, हर अखबार के फ्रंट पेज पर रोज जो है वो बड़ा सा ऐड आना चाहिए, और वो किसका आएगा, हमारे बैंक का आएगा। जैसे आईसीआईसी बैंक आता है ना, तो शाहरुख खान करता है ना आईसीआईसी बैंक का, तो अब वो आपने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करा हुआ है, और मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया हुआ बहुत बुरी तरह से, और जहां दिख रहे हो आपको सिर्फ उसी बैंक के जो है वो होर्डिंग दिख रहे हैं, और उसी बैंक के जो है वो आपको ऐड दिखते हैं। अब टीवी पे देखो या फिर आप जो आईपीएल देखोगे, आईपीएल के अंदर उसके, अब आईपीएल में अगर आप ऐड दे रहे हो, एक बैंक ऐड दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा, एसबीआई वाले नहीं दे रहे, आईसीआईसी वाले दे रहे हैं, आईसीआईसी वाले देंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और दूसरों की कॉस्ट क्या रहेगी, कम रहेगी। तो एक जो बैंक है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, एक बैंक की कॉस्ट कम हो सकती है। तो इस वजह से इस बैंक ने तो 1% जो है बढ़ाना तो चाहिए था 1%, इसने 2 बढ़ाया, इसने कुछ बढ़ाया ही नहीं। और ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि एमसीएलआर इज इंटरनली डिटरमाइंड, आंतरिक रूप से हर बैंक के अंदर, जिसमें पहली बात क्या लिखी ईबीएलआर में, अपन ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में पहली बार क्या रखी है, एमसीएलआर के विपरीत यह बाहरी रूप से निर्धारित होता है। एमसीएलआर तो कैसा हो रहा है, आंतरिक रूप से, यानी हर बैंक जो है अपनी अपनी निर्धारित कर रहा है। तो अपनी अपनी निर्धारित करेगा तो वो इसलिए क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है, अलग अलग। हालांकि आपने रेपो रेट को जोड़ा हुआ तो है, परंतु उनकी खुद का वाला फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अब क्या कर दो, इसको हटा दो, और अब बैंक को ये कहा कि तुम इसको ऐसा करो, इसको लेके आओ ईबीएलआर, जिसमें या तो उसको रेपो रेट रखो, या उसको जो है वो 91 डेज के ट्रेजरी बिल, टी बिल की यील्ड, या फिर आप 182 टी बिल यील्ड, या फिर जो फाइनेंशियल इंडिया बेंचमार्क लिमिटेड है इसके द्वारा डेवलप्ड कोई बेंचमार्क, जैसे मान लो मिबोर, इसको निर्धारित कर लिया। और हर बैंक, फिर सारे बैंक जो है मिलकर निर्धारित कर लो कि अपन को सबको रेपो रेट ही निर्धारित करनी है। सारे के सारे होम लोन जो है वो किस पे आधारित होंगे, रेपो रेट पे। सारे के सारे ऑटो लोन किस पे होंगे, 91 दिन के ट्रेजरी बिल पे। तो सारे के सारे क्या हो गए, यूनिफॉर्म हो गए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आईसीआईसी वाले बैंक वालों के उनके तो ज्यादा बढ़ रहा है या एसबीआई वालों का कम हो रहा है, अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इंटरनली बैंक डिसाइड कर नहीं रहा, ये तो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। और आरबीआई ने तो ये सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक समान होगी। और आरबीआई जैसे ही इसको चेंज करेगा वैसे यहां पर भी परिवर्तन हो जाएगा, उतना ही परिवर्तन होगा जितना आरबीआई ने चेंज किया। आरबीआई ने अगर 1% का इंक्रीमेंट किया है तो ये जो बैंक होंगे वो अपनी ब्याज दर में भी कितने % का करेंगे, 1%। और आरबीआई ने अगर 1% की कमी की है अपनी रेपो दर में तो 1% की कमी हो जाएगी। और जिस दिन आरबीआई ये काम करेगा
तो जिस दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ, कि जैसे हर 60 दिन में होता है ना, तो मान लो कि आज क्या तारीख है, 27 मार्च, 26 मार्च है, तो मान लो 27 मार्च, 26 मार्च को जो डिसाइड हुआ कि आज से जो आपकी रेपो रेट है वो इतने % कम, तो अगले ही दिन सारे बैंकों की ब्याज दर जो है क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके लिए आरबीआई को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फास्टर मूवमेंट ऑफ दी आपकी पॉलिसी जो रेट है, वो पॉलिसी रेट जो है एकदम उसी समय कहां तक पहुंच जाएगी, कर्जदारों तक, कि अगले दिन से वो उसी दर पर आपको मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा प्रभावी। और आरबीआई को यही काम करना है कि अपनी मौद्रिक नीति को प्रभावी करेगा, तभी तो उसको, आपने उसको टारगेट दे रखा है, उसके लिए तो एकदम टारगेट फिक्स है कि 2% का मतलब 2% ही होनी चाहिए, और 6% का मतलब 6% ही होनी चाहिए। इससे इधर भी और इससे ना इधर, इधर उधर जा रहे हो तो इसका मतलब फिर आप जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये होती है आरबीआई की बेंचमार्क लेंडिंग रेट। चलो फिर आज के लिए तय करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।